کیونکہ غدیر میں تو مائک بھی نہیں تھا، لیکن من کن تو مولا فہذا علی مولا کی صدا پوری دنیا میں پہنچی۔ شعر میں دم ہونا چاہیے۔ میں حمد باری تعالی سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کا الزام ہے کہ شیعہ نعت نہیں پڑھتے، ارے ہم تو حمد بھی پڑھتے ہیں۔ سماعت فرمائے حمد۔ میرا ہر شعر سکون دل محسن کر دے، حمد حمد سماعت فرمائے۔ حمد قابل قبول ہے۔ میرا ہر شعر سکون دل محسن کر دے، مجھ کو محراب تبرع کا مؤذن کر دے۔ خالص حمد۔ میرا ہر شعر سکون دل محسن کر دے، مجھ کو محراب تبرع کا مؤذن کر دے، اور میں نے 18 ایئر تیرا کیا ہے سجدہ، میں نے 18 ایئر تیرا کیا ہے سجدہ، اے خدا مجھ کو ابو لولو سا مومن کر دے۔ میں نے 18 ایئر تیرا کیا ہے سجدہ، اے خدا مجھ کو ابو لولو سا مومن کر دے، اے خدا مجھ کو ابو لولو سا مومن کر دے۔ اور ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب ابو ذر کنتوری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، انہوں نے فون سے یہ مجھ سے کہا کہ یہ قطع ضرور پڑھنا، اور وہ حاضر کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائے، بڑی جرأت کی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ وہ منافق ہیں، تو لوگ سمجھتے تھے کہ کس کو کہا جا رہا ہے۔ اب تو اپنا ہی کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ شاید ہمیں کہہ رہے ہیں۔ حاضری میں نے غاصبین پہ لعنت کی، پابندی لگی ہوئی تھی نام لے کر نہیں کرنا ہے لعنت۔ میں نے کہا کہ غاصبین پر لعنت، بغل سے ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا۔ نام نہ لینے کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں آپس میں۔ یہ چاروں مصرے یاد رہیں یا نہ رہیں، لیکن اس سال یہ 2 مصرے آپ کو ضرور یاد رہیں گے۔ سماعت فرمائیں۔ جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے؟ جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے؟ تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے۔ جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے؟ جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے؟ تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے۔ جناب محسن کو کس نے مارا جو یہ بتانے کا دم نہیں ہے؟ تو چاہے جتنی عمر ہو اس کی وہ مولوی محترم نہیں ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں، تھے چور ڈاکو
میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو. میں کہہ رہا ہوں تھے چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو. منگا دو ایک ڈبہ حاج مولا یہ بات مجھ کو ہجم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو. میں کہہ رہا ہوں کہ چور ڈاکو وہ کہہ رہے ہیں غنی تھے خالو. منگا دو ایک ڈبہ حاج مولا یہ بات مجھ کو ہجم نہیں ہے. منگا دو ایک ڈبہ حاج مولا یہ بات مجھ کو ہجم نہیں ہے. اب مدح ممدوح کی طرف آ رہا ہوں. او بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ. ذہن کی بتی جلا کے دیکھ. او بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ. گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ. او بے وقوف ذہن کی بتی جلا کے دیکھ. گھر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ. اب کیوں دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے؟ بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ. کیوں دشمنی ہے تجھ کو امام حسین سے؟ بہتر ہے اپنے خون کا چیک اپ کرا کے دیکھ. دیکھیے کیا کیا شاعری میں نے کی ہے. یہی میں سوچ رہا تھا کہ اگر پبلک کو شعر سنائے گئے ہوتے تو کتنی داد ملتی. میں حاضر کر رہا ہوں. کیسے نہ اس کے سجدے پر خالق کو ناز ہو. کیسے نہ اس کے سجدے پر خالق کو ناز ہو جس کے پدر کا عشق مکمل نماز ہو. کیسے نہ اس کے سجدے پہ کیسے نہ اس کے سجدے پہ خالق کو ناز ہو جس کے پدر کا عشق مکمل نماز ہو. اور فطرس کو پر ملے جو امام حسین سے. فطرس کو پر ملے جو امام حسین سے. ایسا ہوا کہ جیسے ہوائی جہاز فطرس کو پر ملے. فطرس کو پر ملے جو امام حسین سے. ایسا اڑا کہ جیسے ہوائی جہاز ہو. اور ایک قطعہ حاضر کر رہا ہوں. اچھا ہے کوئی نیتا یہاں پر نہیں ہے. بھائی یہ لیڈر ہے نیتا نہیں. میں حاضر کر رہا ہوں. ابن زہرا ہے کرم فرمائیں گے. ابن زہرا ہے کرم فرمائیں گے. اکبر و عباس لینے آئیں گے. ابن زہرا ہے کرم فرمائیں گے. اکبر و عباس لینے آئیں گے. اب بولی قسمت چل درے شبیر پر ہر تیرے بھی اچھے دن آ جائیں گے. بولی قسمت چل درے شبیر پر ہر تیرے بھی اچھے دن آ جائیں گے. اب اس طرح کی شاعری کوئی کرتا ہی نہیں ہے کہ داد ملے اس کے بعد شکایت کرتے ہیں مائک خراب ہے مجمع نہیں سن رہا ہے. دیکھیے شاعری کیسے کی جاتی ہے. خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے. خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے اسی سے چاند کے آنگن میں بھی اجالا ہے. خدا نے نور کے سانچے میں جس کو ڈھالا ہے
उसी से चांद के आंगन में भी उजाला है और चमक रहा है सेना पर हुसैन का चेहरा। चमक रहा है सेना पर हुसैन का चेहरा। अमीर शाम का मुंह भैंस से भी काला है। चमक रहा है, कोई ऐसी शायरी करता ही नहीं। चमक रहा है सेना पर हुसैन का चेहरा। चमक रहा है सेना पर हुसैन का चेहरा। अमीर शाम का मुंह भैंस से भी काला है। और देखिए कितने नाजुक नाजुक शेर मैंने कह दिए हैं। देखिए आजकल कोई फतवा आ रहा है अलम के ऊपर, ताजिए के ऊपर, मजलिसों के ऊपर फतवे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना? आते कब हैं? समाअत फरमाए। बज़्म में जब हम बराए मदहे सरवर आ गए, बज़्म में जब हम बराए मदहे सरवर आ गए, एक मिनट में शेख को 24 चक्कर आ गए। बज़्म में बहुत ही नाजुक ये 4 मिसरे हैं। बज़्म में जब हम बराए मदहे सरवर आ गए, एक मिनट में शेख को 24 चक्कर आ गए और 9 महीने मुफ्तियों ने पेट में फतवे रखे। 9 महीने मुफ्तियों ने पेट में फतवे रखे। जब अज़ा का चांद निकला मुंह से बाहर आ गए। 9 महीने मुफ्तियों ने पेट में फतवे रखे। 9 महीने मुफ्तियों ने पेट में फतवे रखे। जब अज़ा का चांद निकला मुंह से बाहर आ गए। जब अज़ा का चांद निकला मुंह से बाहर आ गए। और एक कता 2 क़ितात अगर यहां पर ना पढ़ूं तो बड़ी नाइंसाफी होगी कि तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस समत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? तुम कुफ्र के टेम्पू से उतर क्यों नहीं जाते? जिस समत है सलमान उधर क्यों नहीं जाते? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? कुत्तों की तरह जीना भी किस काम का जीना? हैदर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? पूरी दुनिया में ये 4 मिसरे पढ़ूं, अगर लखनऊ में ना पढ़ूं तो समझिए कहीं नहीं पढ़ा। समाअत फरमाए। न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे हैं। न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे हैं। जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, वो चेहरे आज भी टुंडे कबाब जैसे हैं। जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था, वो चेहरे आज भी टुंडे कबाब जैसे हैं। और अली के बुग़्ज़ के तोते हैं तोता चश्म बहुत, अली के बुग़्ज़ के तोते हैं तोता चश्म बहुत।
सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। अली के बुग़्ज़ के तोते हैं तोता चश्म बहुत, सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। अरे अरे वो बन गई फोकट में मोमिन की मां। अरे वो बन गई फोकट में मोमिन की मां, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। अरे वो बन गई फोकट में मोमिन की मां। अरे वो बन गई फोकट में मोमिन की मां, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। नारे हैदरी। अरे वो बन गई फोकट में मोमिन की मां, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। और नैयर भाई, आप नहीं जानते होंगे कि मैं लखनऊ के मजमे को कितना ज्यादा मानता हूं, इतना दिल से चाहता हूं कि मैं इतनी भी जहमत नहीं देता हूं कि कोई फरमाइश करे मैं खुद एक कलाम हाजिर करने जा रहा हूं। जी हाजिर कर रहा हूं। देखिए, हमारे भाई ने कता याद दिलाया, मैं पढ़ दे रहा हूं कि नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। नजफ के तस्करे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। तो अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा, अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा। ये सबके साथ कोरोना वायरस लेकर टहलते हैं। अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा, अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा। ये सब के सब कोरोना वायरस लेकर टहलते हैं। और ये कलाम मैं हाजिर कर रहा हूं, मिसरा था कि चिरागे जुल्म यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन। हकीकत में कोई माइक को समझ नहीं पाया। इस पर आप जितना चीख के पढ़िएगा आवाज उतनी कम आएगी, जितने स्लो पढ़िएगा उतनी तेज आवाज आएगी। मैं मतलब हाजिर कर रहा हूं। कभी कभी मुझे जुकाम बुखार हो जाता है तो फिर शायरी भी थोड़ी सी तब्दील हो जाती है, कभी कभी अच्छे शेर। मैं माजरत चाहता हूं, मतलब हाजिर कर रहा हूं। अच्छा हो गया है मतलब, इसलिए माजरत। ज़मीन खरीद के नक्शा बना रहे हैं हुसैन। जमीन खरीद के नक्शा बना रहे हैं हुसैन। ऐ करबला तेरा चेहरा सजा रहे हैं हुसैन। जमीन खरीद के नक्शा बना रहे हैं हुसैन। ऐ करबला तेरा चेहरा सजा रहे हैं हुसैन। और जमीन गस्ब न करना, खरीद कर लेना। जमीन गस्ब न करना, खरीद कर लेना। सबक ये सारे जहां को पढ़ा रहे हैं हुसैन। जमीन गस्ब न करना, खरीद कर लेना। सबक ये सारे जहां को
पढ़ा रहे हैं हुसैन। इसके बाद मैंने अच्छा शेर कहने की गलती नहीं की है, मैं हाजिर कर रहा हूं और तमाम उलमाए कराम और शुअराए कराम से माजरत चाहते हुए एक शेर पढ़ रहा हूं। देखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ी सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। तो सरकार का क्या क्या काम होता है, सीखना चाहिए दुनिया की सरकारों को। इन्हीं के जिक्र से मोटे लिफाफे मिलते हैं। इन्हीं के जिक्र से मोटे लिफाफे मिलते हैं। अरे न जाने कितने घरों को चला रहे हैं हुसैन। इन्हीं के जिक्र से मोटे लिफाफे मिलते हैं। इन्हीं के जिक्र से मोटे लिफाफे मिलते हैं। न जाने कितने घरों को चला रहे हैं हुसैन। न जाने कितने घरों को चला रहे हैं हुसैन। और है अहुर फटाक से, फटाक मतलब तुरंत, ये जिन्नाती जबान है। अहुर फटाक से फौजे यजीद छोड़ के अहुर फटाक से फौजे यजीद छोड़ के आ। अरे तुझे बहिश्त का वीजा दिला रहे हैं अहुर फटाक से फौजे यजीद छोड़ के आ, तुझे बहिश्त का वीजा दिला रहे हैं हुसैन। और मैं जानता था इस पे बहुत दाद मिलेगी, इसलिए एक हल्का सा शेर कह दिया। इसके बाद ताकि आराम कर लूं। सबातो सब्र को मेराजे बंदगी देखा, सबातो सब्र को मेराजे बंदगी देकर क्रेज जुल्मो सितम का गिरा रहे हैं हुसैन। क्रेज जुल्मो सितम का गिरा रहे हैं हुसैन। अब मसल के जूते के तल्ले से रोजे आशूरा चिरागे जुल्म यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन। मसल के जूते के तल्ले से रोजे आशूरा, वो हाथ से थोड़ी ना बुझेगा, मसल के जूते के तल्ले से रोजे आशूरा चिरागे जुल्म यजीदी बुझा रहे हैं हुसैन। और ये सुन के शिमर को होने लगा है हार्ट अटैक। ये सुन के शिमर को होने लगा है हार्ट अटैक। गमों की भीड़ में भी मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। ये सुन के शिमर को होने लगा है हार्ट अटैक। गमों की भीड़ में भी मुस्कुरा रहे हैं हुसैन। और ये शेर जब मैंने पढ़ा, एक शेर अलग से हो गया था सदब भाई, एजाज भाई। जब ये मैंने पढ़ा उस मकासदे में, तो लोगों ने कहा भाई इससे अच्छा शेर आएगा ही नहीं। फिर मैंने सुबह में फोन करके पूछा कि उससे अच्छा शेर आया था। उन लोगों ने बताया नहीं आया था इस मिसरे में। अब समाअत फरमाए। रसूल नाका बने हैं, मिहार हाथ में है। रसूल नाका बने हैं, मिहार हाथ में है। अरे इमाम होके नबूवत चला रहे हैं उसे। रसूल नाका बने हैं। रसूल नाका बने हैं, मिहार हाथ में है। रसूल नाका बने हैं, मिहार हाथ में है। इमाम होके नबूवत चला रहे हैं हुसैन।
इमाम होके नबूवत चला रहे हैं हुसैन, और लहद में मातमे सरवर पे है सवालो जवाब। लहद में मातमे सरवर पे है सवालो जवाब, जनाबे शेख को भी याद आ रहे हैं हुसैन। लहद में मातमे सरवर पे है सवालो जवाब, जनाबे शेख को भी याद आ रहे हैं हुसैन। जनाबे शेख को भी याद आ रहे हैं हुसैन, और इन्हीं का सदका ये आबो ग़िज़ा है बेताब। इन्हीं का सदका ये आबो ग़िज़ा है, ये इन्हीं का सदका ये आबो ग़िज़ा है बेताब, किचन हमारा है खाना खिला रहे हैं हुसैन। मैं हाजिर कर रहा हूं मौला रेहान आज़मी साहब को जवारे रहमत में जगह इनायत फरमाए। उन्होंने कराची में एक महफिल की थी, क्या होता अगर हैदर कर्रार न होते। नेट पे मैंने तलाश किया तो पूरा कलाम नहीं था, मैंने पढ़ दिया, उसके बाद मैं भूल गया। नेट पे देखा तो 2-3 शेर काट काट के डाले गए थे। फिर मैंने उनके बेटे से कहा कि कहीं, तो वो छपा हुआ कलाम था। अब मैं वो मुकम्मल कलाम पढ़ रहा हूं। क्या होता, क्या होता। बहुत अच्छे अंदाज में पूछा था, मैंने भी कबूल किया। क्या होता अगर हैदर कर्रार न होते। मैंने कहा मैं ही बताऊंगा कि ना होते तो क्या होता। वो बुग़्ज़े अली में जो गिरफ्तार न होते, वो बुग़्ज़े अली में जो गिरफ्तार न होते, अमरीकी छिछोरों के तरफदार न होते। वो बुग़्ज़े अली में जो गिरफ्तार न होते, अमरीकी छिछोरों के तरफदार न होते। और देखिए 2003 में भी मैंने शायरी की थी, हमेशा मैं शेर ही कहता हूं। समाज फरमाए कि जुल्मत के विलेन, जुल्मत के विलेन दीन में भर देते अंधेरे। जुल्मत के विलेन दीन में भर देते अंधेरे, गर दीन में 12 सुपरस्टार न होते। जुल्मत के विलेन दीन में भर देते अंधेरे, जुल्मत के विलेन दीन में भर देते अंधेरे, गर दीन में 12 सुपरस्टार न होते। और अमेरिका मसल देता उसे 1 मिनट में। उस वक्त लेबनान और इसराइल की जंग चल रही थी। अमेरिका मसल देता उसे 1 मिनट में लेबनान में जो शेखे आजादार न होते। अमेरिका मसल देता उसे 1 मिनट में लेबनान में जो शेखे आजादार न होते। और उस वक्त लिस्ट निकली हुई थी कि अमीरों में फला अमीर साहब, फला अमीर साहब, फला अमीर साहब, ये इतने अमीर हैं, ये इतने अमीर हैं, और इसमें कोई भी शिया नहीं है। मैंने शेर कहा उस वक्त, वहीं कहा वहीं पढ़ा, समाज फरमाया। इतनी लंबी फहरिस्त अमीरों की, उसमें एक शिया नहीं है। मैंने शेर पढ़ा कि हसनैन की नानी जो लुटा देती न दौलत, हसनैन की नानी जो लुटा देती न दौलत, भिखमंगे मुसलमान जमींदार न होते।
हसनैन की नानी जो लुटा देती न दौलत, हसनैन की नानी जो लुटा देती न दौलत, भिखमंगे मुसलमान जमींदार न होते, भिखमंगे मुसलमान जमींदार न होते। और रोए हैं बहुत गार में छिपकर शबे हिजरत, रोए हैं बहुत गार में छुपकर शबे हिजरत, सोने को कहा जाता तो तैयार न होते। रोए हैं बहुत, रोए हैं बहुत गार में छुपकर शबे हिजरत, रोए हैं बहुत गार में छुपकर शबे हिजरत, सोने को कहा जाता तो तैयार न होते, सोने को कहा जाता तो तैयार न होते। और देखिए जो सऊदिया का हाल किया है सलमान मलऊन ने, शेर देखिए, मैंने 2003 में आज के लिए शेर कह दिए थे। पी लेते अगर खुम में मैं हुब्बे विलायत, पी लेते अगर खुम में मैं हुब्बे विलायत, इस्लामी ममालिक में बियर बार न होते। पी लेते अगर खुम में मैं हुब्बे विलायत, पी लेते अगर खुम में मैं हुब्बे विलायत, इस्लामी ममालिक में बियर बार न होते। और आप सभी लोग लफ्जों की नजाकत से वाकिफ हैं, आप जानते हैं कौन से सितारे मनहूस होते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं बुजुर्गों के लिए बता देता हूं, बच्चे तो जानते ही हैं। मैं हाजिर कर रहा हूं कि सरकार उठाते न उन्हें कान पकड़कर, सरकार उठाते न उन्हें कान पकड़कर, महफिल में कुछ स्टार जो दुमदार न होते। सरकार उठाते न उन्हें कान पकड़कर, सरकार उठाते न उन्हें कान पकड़कर, महफिल में कुछ स्टार जो दुमदार न होते। और देखिए ये साइंटिफिक शेर मैंने पढ़ा है, तो अब एक मैथमेटिकल शेर हाजिर कर रहा हूं। पढ़ते ना अगर शेख अदावत का पहाड़ा, पढ़ते ना अगर शेख अदावत का पहाड़ा, तो पीछे पहाड़ी के गिरफ्तार न होते। पढ़ते ना अगर शेख अदावत का पहाड़ा, पढ़ते ना अगर शेख अदावत का पहाड़ा, तो पीछे पहाड़ी के गिरफ्तार न होते। और देखिए मैंने बताया, देखिए मिसरे का तेवर क्या था, क्या होता अगर हैदर कर्रार न होते। तो मैंने बताया नहीं, एक सवाल और खड़ा कर दिया, क्या होता अगर हैदर कर्रार न होते। फतवे तो बहुत देते हो, नाना से ये पूछो। फतवे तो बहुत देते हो, नाना से ये पूछो क्या होता अगर हैदर कर्रार न होते। फतवे तो बहुत देते हो, फतवे तो बहुत देते हो, नाना से ये पूछो क्या होता अगर हैदर कर्रार न होते। तो जिब्रील के टीचर की इनायत है ये, वरना
जिब्रील के टीचर की इनायत है ये, वरना बेताब के अशार धुआं धार न होते।